welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today is a fresh topic which is consideration. It means we'll be discussing section 2 clause D of the Indian Contract Act which deals with consideration. Guys, इसके definition बहुत easy है. उसके definition से ही हमारे पास कुछ essential elements आएंगे consideration के, and in this particular video we are going to discuss only the important essentials for a valid consideration. Before we begin guys, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, you are visiting here in this video for the first time, please like my channel, please subscribe my channel, and if you understand what I teach, you enjoy learning with me, please let me know in the comment section. So guys, let's get started. Now what is meant by consideration? Consideration which is defined under section 2 clause D of the Indian Contract Act 1872, इसका अगर मैं general meaning लूँ तो इसका मतलब होता है something in return. It means quid pro quo. Quid pro quo का मतलब होता है something in return which means promise for a promise. I've given you an example. Suppose A says to B that I wish to sell my car to you worth 2 lakh rupees. अब यहाँ पे अगर A B को अपनी कार देगा तो this is for sure कि B को भी A को 2 लाख रुपीस देने होंगे. जहाँ पे promise 1 is made by A to B कि I'll be giving you my car, वहीं पे promise 2 is made by B to A जहाँ पे B agrees to pay 2 lakh rupees to A for that car in exchange for that car. It means something in return. एक दूसरे को they are getting something in return. A is getting 2 lakh rupees for his car and at the same time B is getting a car in return for 2 lakh rupees जो वो A को देगा. यानी कि quid pro quo something in return यानी कि promise for promise. This is known as consideration. ये इसका एक general meaning होता है consideration, promise for promise, something in return. But if I talk about the legal meaning of consideration, it has been defined under section 2 clause D of the Indian Contract Act. Guys, इसकी definition को हम 4 parts में divide करेंगे और वहीं से हम इसके 4 important essentials को discuss करेंगे. And a point to be noted is that कि अगर एक भी essential पूरा नहीं होगा, fulfill नहीं होगा, तो वहाँ पे valid consideration नहीं होगी. So consideration के अगर essentials को discuss करें तो उसके पहले हमें उसके definition को study करना है. Definition बोलती है when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing anything or does or abstains from doing anything or promises to do or abstains from doing anything, something with promises to do something, such an act, abstinence or promise is said to be consideration for that promise. अब guys यहाँ पे मैंने आपको इसके definition बताई है, यहीं पे इसके important essentials हैं 1, 2, 3 and 4. तो first क्या है when at the desire of the promiser, ये हमारा क्या रहेगा first essential रहेगा. When at the desire of the promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing something, has done or abstains from doing, promises to do or abstains from doing something with something, such an act, abstinence or promise is known as consideration for that promise. So ये चारों points को हम discuss करेंगे one by one and these are the 4 important essentials of consideration. So पहला important essential इसका first आता है when at the desire of the promiser. It means जो consideration है it must move at the desire of the promiser. It must be at the desire of the promiser. Simple example अगर मैं आपको दूँ तो A और B की दो लोग हैं. A is the owner of a car. अब A अगर चाहता है तो वो अपनी गाड़ी बेच सकता है टू B. यानी कि यहाँ पे A और B, इसमें A इज द प्रोमिसर एंड B इज द प्रोमिसी. आपको पता है जब हम बेसिक्स क्लियर करें दिस इज समथिंग विच इज अंडरस्टूड. अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए कि प्रोमिसर प्रोमिसी कौन होता है. इफ़ यू आर a bit confused अभी भी प्लीज वॉच ऑल माई वीडियोज ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आपको समझ आएंगे हर एक कॉन्सेप्ट. इनिशियल बिगिनिंग टाइम्स में वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अब यहाँ पे A इज द प्रोमिसर, B इज द प्रोमिसी इन दिस एग्जाम्पल. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कंसिडरेशन होती है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसर की डिजायर पे अगर ये होगी तभी वो वैलिड कंसिडरेशन होगी. अगर ए कहेगा कि आई विश टू सेल माई कार टू यू फॉर 2 लाख रुपीज, सो इट इज समथिंग विच इज एट द डिजायर ऑफ ए. अब यहाँ पे अगर ए ने कहा कि मुझे मेरी मारुति कार के बजाय 2 लाख रुपीज़ रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर मैं अपनी कार दूंगा तो मैं उसके लिए 2 लाख रुपीज़ लूँगा, तो ये ए की डिस्क्रिप्शन होगी. ए हैज़ टू टेल बी, प्रोमिसर हैज़ टू टेल कि मुझे क्या कंसिडरेशन चाहिए. थर्ड पर्सन कोई आके बी को नहीं बोल सकता कि इन रिटर्न फॉर दैट कार आप 5 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, वॉट एवर. ऐसा नहीं होगा. नो थर्ड पर्सन कैन एंटर. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बताएगा कि मुझे कितनी कंसिडरेशन बी से चाहिए. इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ ए, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ है, उसको डिस्कस करेंगे. इस पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज
दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880। गाइस इस केस में क्या हुआ था, बहुत अच्छा केस लॉ है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ आएगा। इस केस में एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि देयर वाज अ पर्सन नेम्ड दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद को एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने कहा, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद को कहा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट की मार्केट को बनाओ। तो दुर्गा प्रसाद ने अपने खुद के ओन एक्सपेंसेस पे उस डिस्ट्रिक्ट की मार्केट को बना दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ किसने कही थी दुर्गा प्रसाद को, कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर ने उसको ऑर्डर्स दिए और उसने अपने खुद के एक्सपेंस पे दुर्गा प्रसाद ने क्या किया, मार्केट कंस्ट्रक्ट कर दी। अब गाइज यहाँ पे अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो ये चीज़ की गई दुर्गा प्रसाद की तरफ से, इट वॉज एट द डिजायर ऑफ दिस कलेक्टर, इसकी मर्जी थी, कलेक्टर ने कहा था तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, वन डे व्हाट हैपेंड इज जो मार्केट उसने कंस्ट्रक्ट की दुर्गा प्रसाद ने, उस मार्केट में बहुत सारे शॉपकीपर्स थे, बहुत सारी शॉप्स थी। तो उसमें से एक शॉपकीपर थे जिनका नाम था बलदेव। उन्होंने क्या किया, दुर्गा प्रसाद को एक प्रॉमिस किया और उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी सेल होगी मार्केट में, मेरी शॉप की जितनी भी सेल होगी उसमें से मैं आपको कुछ पार्ट एज अ कमीशन दिया करूँगा। अब यहाँ पे व्हाट हैपेंड इज कि जब बलदेव की तरफ से दुर्गा प्रसाद को कमीशन नहीं मिली तो दुर्गा प्रसाद ने बलदेव को स्यू किया। अब कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आप इनको स्यू नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पीपल। यहाँ पे ये वाली चीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है। आपको वो कमीशन क्यों देगा, आपने उसके लिए क्या किया। तो उसने कहा मैंने मार्केट कंस्ट्रक्ट करी, बट कोर्ट ने कहा आपने मार्केट जो कंस्ट्रक्ट की थी इट वाज नॉट एट द डिजायर ऑफ दिस शॉपकीपर बट एट द डिजायर ऑफ दिस पर्सन कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आपका इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन हियर सिंस देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता बलदेव को कि आप अपने प्रॉमिस को पूरा करो। प्रॉमिस में कंसिडरेशन होगी तभी वो अग्रीमेंट बनेगी, अग्रीमेंट को इन्फोर्सिबिलिटी मिलेगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई होप आपको याद है ये सारी सीरीज, स्टेप्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसमें हमें इंपॉर्टेंटली देखा कि प्रॉमिस मस्ट हैव कंसिडरेशन। अब वो कंसिडरेशन होगी तो अग्रीमेंट बनेगी, अग्रीमेंट बनेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं है, तभी आप ड्रॉन इट फॉर यू कि कमीशन तो मिल जाएगी लेकिन कमीशन के बदले क्या दिया, नथिंग। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। और अगर आप कहो कि मैंने मार्केट बनाई है तो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। वो वैलिड क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। यहाँ पे प्रॉमिसर ने प्रॉमिस जरूर किया आपसे, लेकिन आपने उसको क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। और अगर आप कहो मैंने मार्केट बनाई है तो इट वॉज नॉट एट हिज डिजायर, इसने नहीं कहा था फॉर अ कंसिडरेशन टू बी वैलिड इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे होगा, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर के डिजायर पे आपने ये बनाया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट असेंशियल of a consideration to be valid is not fulfilled here. Consideration must move at the desire of the promisor, लेकिन यहाँ पे it was moved at the desire of the collector। तो आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा लेकिन इस इंसान को आप स्यू नहीं कर सकते। Second important point is that when at the desire of the promisor, promisee or any other person, promisee or any other person, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो कंसिडरेशन होती है इट मस्ट मूव ईदर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल वही उठाते हैं ए एंड बी। अब अगर ए बी को अपनी मारुति कार बेचता है तो यहाँ पे ए इज़ द प्रोमिसर, उसकी डिज़ायर पे 2 लाख रुपीज़ बी को देने होंगे। अब दीज 2 लाख रुपीज़ ये या तो बी देगा ए को, यानी कि कंसिडरेशन जो है 2 लाख रुपीज़ इट मस्ट मूव बाय द प्रोमिसी टू द प्रोमिसर, प्रोमिसी को देना है प्रोमिसर को और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे एनी अदर पर्सन का क्या मतलब है, गाइस एनी अदर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम केस लॉ डिस्कस करेंगे, आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, बिकॉज ये जो पॉइंट है ऑन एनी अदर पर्सन, ये पॉइंट इंडियन लॉ को और इंग्लिश लॉ को डिफ्रेंशिएट करता है। इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है लेकिन इंडियन लॉ में है। एनी अदर पर्सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का, पर प्रायर टू दैट हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, उसके फैक्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। हमारे पास केस आता है चन्नैया वर्सेस रमैया 1882। गाइस इस केस लॉ में क्या हुआ था कि देयर वाज अ मदर की एक डॉटर थी। मदर ने क्या किया, उसने अपनी डॉटर की शी एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ हर डॉटर। मदर शी एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ हर डॉटर आर, यानी कि चन्नैया, यहाँ पे क्या हुआ, मदर ने आर इसके नाम की एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट किया तो मदर ने अपनी डॉटर से एक प्रॉमिस लिया और वो प्रॉमिस ये था कि आपको क्या करना है, आपके नाम में अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दूंगी प्रोवाइडेड आपको मेरे जो ब्रदर हैं यानी कि आर के जो अंकल हैं उनको आपको एन्युटीज देनी है ₹653।
पर एनम आपको पे करनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉमिस तो हो चुका है, प्रॉमिस में क्या था, मदर ने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी, आर शी मेड अ प्रॉमिस इन राइटिंग टू हर मदर, उसने ये लिखित रूप में लिख के अपनी मदर को दे दिया था कि आई विल बी पेइंग एन्युटीज टू माई अंकल, मैं उनको दूंगी। अब यहाँ पे व्हाट हैपेंड इज, थोड़ी देर के लिए तो ये चलता रहा, बट आफ्टर सम टाइम आर स्टॉप्ड पेइंग एन्युटीज टू हर अंकल एंड बाय दैट टाइम हर मदर हैड डाइड, उनकी डेथ हो चुकी थी। अब यहाँ पे आर ने क्या किया, एन्युटीज देना बंद कर दिया। अब उसके जो अंकल थे, ही स्यूड दिस आर, उन्होंने इसको स्यू किया और उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि यहाँ पे शी इज़ रॉन्ग और उनको कहो मुझे एन्युटीज प्रोवाइड करेंगी। तो आर ने यहाँ पे प्ली रेज करी ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, और इस प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट ने कहा था कि आर इज बाउंड टू पे एन्युटीज टू हर अंकल। अब इसका वर्डिक्ट आपको पता लग गया ना, व्हाट इज मेंट बाय प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब गाइज होता है कि जो स्ट्रेंजर होता है टू अ कॉन्ट्रैक्ट, टू अ कंसिडरेशन, ही कैन नॉट स्यू। मतलब देखो यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस मदर एंड हर डॉटर, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन दिस मदर एंड हर डॉटर, जहाँ पे उसकी मदर उसको गिफ्ट डीड देती है, शी एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन हर फेवर provided she promised in writing that I'll be paying annuities to my uncle। तो इस प्रॉमिस को देखते हुए फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, फर्स्ट इज बिटवीन दीज टू पीपल, सेकंड इज बिटवीन दीज टू पीपल। अब यहाँ पे आर ने क्या कहा कि मैं तो इनको एन्युटीज प्रोवाइड करूंगी, बट समथिंग इन रिटर्न, मुझे क्या मिल रहा है बदले में। यहाँ पे आप देख रहे हो तो सिर्फ एक एरो है, तो मैं इनको एन्युटीज प्रोवाइड करूंगी 653 रुपीज़ की, पर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, इन रिटर्न समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस नहीं है, तो मैं इनको एन्युटीज प्रोवाइड नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आर ने ये कहा। और उसने कहा प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन को अगर देखा जाए, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो स्ट्रेंजर होता है टू अ कंसिडरेशन ही कैन नॉट सी यू। अब देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है और अंकल कौन हुआ, स्ट्रेंजर हुआ टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने कहा कि यहाँ पे ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन एंड ही कैन नॉट स्यू, वो जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते। बट कोर्ट ने कहा कि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल, दो इट इज एप्लीकेबल इन इंग्लैंड, इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स even a stranger to a consideration can sue and he can enforce the contract। अब कोर्ट ने इसका जब वर्डिक्ट दिया तो कोर्ट ने कैसे समझाया, कोर्ट ने कहा कि आप इनको एन्युटीज पे करो, लेकिन इन्होंने, आप बोल रहे हो कि इन्होंने मुझे इन रिटर्न नहीं दिया, इनका जो इन रिटर्न है वो तो आप उसकी आपकी जो मदर है ऑलरेडी वो आपको दे चुकी है, शी एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड, शी एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन योर फेवर, और उस टाइम पे उन्होंने वही तो कहा था कि आपको एन्युटीज पे करनी है। तो डजेंट मैटर आपको ये कंसिडरेशन दे या आपकी मदर दे, फर्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन कैन बी मूव्ड ईदर बाय द प्रॉमिसी, या तो प्रॉमिसी दे सकता है और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे ये प्रॉमिसर है जिसने वादा किया कि मैं एन्युटीज दूंगी, तो ये प्रॉमिसर है और ये प्रॉमिसी है, तो या तो यहाँ से कंसिडरेशन आ सकती है, अगर यहाँ से नहीं आ रही है एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो गिव कंसिडरेशन, और एनी अदर पर्सन यहाँ पे कौन हुई, मदर हुई, एनी अदर पर्सन। तो कोर्ट ने कहा कि जब आपने ये प्रॉमिस किया था, आप प्रॉमिसर बन गई थी एन्युटीज देने के लिए, तो उस टाइम पे एनी अदर पर्सन हैज ऑलरेडी पेड यू द कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन ही तो थी उस टाइम पे, समथिंग इन रिटर्न, और वही प्रॉमिस आप यहाँ पे पूरा कर रहे हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी इंसान कंसिडरेशन दे सकता है, ईदर दिस पर्सन, ये नहीं दे रहे तो इस केस में ये तो इसने तो दिया बिफोर डाइंग, उन्होंने आपसे इस कंसिडरेशन का समथिंग इन रिटर्न क्या था, इस कंसिडरेशन के लिए, आपके वादे के लिए आपको एग्जीक्यूट हुआ गिफ्ट डीड, तो वही तो एक कंसिडरेशन था। अब जरूरी नहीं कि इन्होंने नहीं दिया, सिंस इट मे बी मूव्ड बाय दिस पर्सन, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कोर्ट ने इस केस में चिन्नैया वर्सेस रमैया 1882 में क्लियरली कह दिया था कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि प्रॉमिसर से, प्रॉमिसी से ही आए, जरूरी नहीं, जैसे हमने एग्जांपल दिया ए और बी, जरूरी नहीं कि बी ही दे, प्रॉमिसी भी दे सकता है कंसिडरेशन, और एनी अदर पर्सन किस तरीके से दे सकता है, तो यहाँ पे आपको समझ आए। इट मीन्स अगर मैं कहूँ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो कंसिडरेशन के मेंबर्स है, अब यहाँ पे अगर मैं प्रिविटी लगाऊं, इट मीन्स आर सी को स्यू कर सकता है, सी आर को स्यू कर सकता है, और जो थर्ड पर्सन है वो किसी को स्यू नहीं कर सकता, तो वो होती है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। बट कोर्ट कहता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है,
है, इंग्लिश लॉ में है, बट सिंस वी आर डीलिंग विद केसेस हियर इन इंडिया, इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है. इट मीन्स apart from these two people suing each other for enforcement of a contract, any other person can also sue. तो यहाँ पे कोर्ट ने इसको इस तरीके से समझाया. आई होप आपको गाइस ये समझ आया कि यहाँ पे any other person का मतलब क्या होता है. इस केस लॉ से बहुत क्लियरली समझ आता है कि what is meant by consideration must move either from the promisee or any other person. So कोर्ट ने यहाँ पे ये वर्डिक्ट सुनाया कि आपके इस प्रॉमिस के बदले आपको कंसिडरेशन पहले ही मिल चुकी है. अब अंकल आपको वापस से नहीं देंगे, उनकी कंसिडरेशन उनकी जो सिस्टर है वो ऑलरेडी आपको दे चुकी हैं बाय एग्जीक्यूटिंग अ गिफ्ट डीड इन योर फेवर. सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास अब रहता है कंसिडरेशन का नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल. पहले दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद लैंडमार्क केस लॉज. अब हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल आता है, उसमें हम बेसिकली टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन को डिस्कस करते हैं. अब उसमें आता है ना हैज़ डन और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग. अब देखना, अब इसको वर्डिंग को समझना. तीन तरीके की कंसिडरेशन होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. बहुत इजी है और ये जो वर्डिंग है मैं आपको भी फिर से रिपीट करूंगी, वहां से आपको समझ आता है कि कंसिडरेशन तीन तरीके की होती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन इज पास्ट, present is also known as executed consideration and future consideration is also known as executory consideration. Executory and executed. Present is executed, future consideration is executory consideration which is to be executed in near future, इसीलिए उसको executory बोलते हैं. अब यहाँ पे हम बोलते हैं ना has done और abstained from doing. done और abstained ed it means past. does or abstains from doing, does means present, और promises to do or abstains from doing future. तो ये तीन जो वर्डिंग आती है ना, यहाँ से हमें पता लगता है कि कंसिडरेशन तीन तरीके की होती है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो सीरीज में चलता है. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर दें कि पास्ट कंसिडरेशन होती क्या है. गाइस पास्ट कंसिडरेशन ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आप किसी के लिए कुछ कर देते हो. हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. आई विल बी डिस्कसिंग टू एग्जाम्पल्स. सपोज देयर इज अ पर्सन ए पर्सन इज ड्राउनिंग इन द लेक. वो लेक में डूब रहा है एंड ही इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प कि मुझे बचा लो. अब सामने से एक पासर बाय वो देखता है कि देयर इज सम पर्सन ए हु इज ड्राउनिंग इन द लेक एंड ही इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. गाइस स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड, ही इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. अब यहाँ पे उसकी आवाज़ को सुनते हुए पासर बाय बी हेल्प्स दैट पर्सन एंड रेस्क्यूज हिम, उसको निकाल लेता है. अब यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, जब ए को बचाया बी ने, तो आफ्टर हिज लाइफ इज सेव्ड ए सब्सिक्वेंटली बाद में बी से प्रॉमिस करता है कि आई विल बी पेइंग यू विथ 50,000 रुपीज़ फॉर सेविंग माई लाइफ. तुमने मेरी जान बचाई, आई विल बी पेइंग यू विथ 50,000 रुपीज़. अब यहाँ पे क्या है, इट्स अ पास्ट कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि पास्ट में किसी ने किसी इंसान के लिए कोई काम किया, अब आप किसी को बचाते हो, आपने अपनी सर्विसेज उसको दी, तो वो भी एक कंसिडरेशन होती है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंसिडरेशन. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो किसी ने बी ने ए की लाइफ को सेव किया, वो एक पहले कंसिडरेशन हो चुका है, पर बी को उसके बदले क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला. बट सब्सिक्वेंटली ए ने प्रॉमिस किया कि क्योंकि तुमने पास्ट में मेरी हेल्प करी थी तो उस चीज़ के बदले में तुम्हें 50,000 रुपीज़ दूंगी. तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. और उसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज वैल्यूएबल आइटम. वैल्यूएबल आइटम कोई भी हो सकती है. विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ गोल्ड रिंग. अब उस इंसान ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट लगवाई और बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया, अपने नेबर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई गोल्ड रिंग, इट इज़ लॉस्ट. अब यहाँ पे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अदर पर्सन आप अपने नेबर की रिक्वेस्ट पे जाते हो और गोल्ड रिंग ढूंढते हो. बाय चांस आपको वो गोल्ड रिंग मिल जाती है एंड यू रिटर्न दैट रिंग टू द अदर पर्सन, उसको आप वापस कर देते हो. अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपने उसकी गोल्ड रिंग उसको वापस करी, जिस इंसान को आपने वापस करी वो बोलते हैं कि सिंस यू हैव हेल्प्ड मी फाइंडिंग माई गोल्ड रिंग आई विल बी अवॉर्डिंग यू विथ सो एंड सो रुपीज़. जितनी उसकी मर्जी, उसने सपोज अगेन का 10,000 रुपीज़ में आपको दूंगी फॉर गिविंग बैक माई गोल्ड रिंग टू मी फॉर हेल्पिंग मी. अब यहाँ पे गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पास्ट में बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट comes into existence, before promiser promises to do something, promiser ने ही कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज़ दूंगी, तो before promiser promises to give consideration, उसके पहले ही आप एक्ट कर चुके हो, बचा भी चुके हो. उस टाइम पे आपने क्या किया, आपने किसी को बचाया, लेकिन एट दैट टाइम आपको समथिंग इन रिटर्न नहीं मिला, लेकिन सब्सिक्वेंटली उस इंसान ने आपसे प्रॉमिस किया. अगर आपने वैल्यूएबल आइटम ढूंढ दी उस इंसान की रिक्वेस्ट पे, एट हिज डिज़ायर, उसकी डिज़ायर पे, उसकी रिक्वेस्ट पे आपने उसकी गोल्ड रिंग
ढूंढ के दी, बट उस टाइम पे आपको समथिंग इन रिटर्न नहीं मिला, बट सब्सिक्वेंटली बाद में उस इंसान ने आपसे प्रॉमिस किया। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये क्या पास्ट कंसिडरेशन, एंड पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन, इसको भी हम वैलिड कंसिडरेशन मानते हैं। तो पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि बिफोर प्रॉमिसर प्रॉमिसेस to give consideration you have already done something for the other person। तो A, इसके पहले A आपसे वादा करे कि मैं आपको पैसा दूंगा for saving my life और for finding my valuable item, B has already done something for A, इसको हम बोलते हैं past consideration। But guys, a point to be noted is that कि इन दोनों examples में A was screaming for help, यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में A हैज रिक्वेस्टेड हिज नेबर टू हेल्प हिम फाइंड हिज गोल्ड रिंग। यहाँ पे जो कंसिडरेशन थी इट वाज एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की डिज़ायर पे उसने हेल्प मांगी तो आपने हेल्प दिया, आपने वॉलंटरली नहीं किया, उसकी मर्जी पे किया आपने। सो इट वाज डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, ये उसकी डिज़ायर पे किया गया था, आपने कर दिया और उसने आपको सब्सिक्वेंट प्रॉमिस किया। सो इसको हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। बट गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई भी इंसान आपके सामने डूब रहा है, दो ही इज़ नॉट स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, उसने आपसे हेल्प नहीं मांगी बट आपने उसकी हेल्प करी, या किसी इंसान की वैल्यूएबल आइटम गुम जाती है, वो इंसान आपको रिक्वेस्ट नहीं करता बट आउट ऑफ कर्टसी आप उसकी चीज़ को ढूंढ के देते हो। तो यहाँ पे इट इज़ यू हैव डन इट वॉलंटरली। अब ये पॉइंट क्या आपने वॉलंटरली किया, इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी पास्ट सर्विस, वॉलंटरली आपने उसको सर्विसेज करी पास्ट में। इस पॉइंट को भी होल्ड पे रख लो, इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन सेक्शन 25, वहाँ पे मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर करूँगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेक्शन आपको भी समझना ये है कि पास्ट कंसिडरेशन होता क्या है, कि जब आप पास्ट में किसी के लिए कुछ काम करते हो बट एट द डिज़ायर ऑफ द अदर पर्सन, वॉलंटरली नहीं करते, उस इंसान के डिज़ायर पे जब आप कोई काम करते हो बिफोर ही मेक्स अ प्रॉमिस टू गिव यू कंसिडरेशन, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन, बट इट इज़ डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। और क्योंकि आपने उसके डिज़ायर पे नहीं किया, उसकी वॉलंटरली किया, तो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज डी, सिंस इट इज़ नॉट एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, डिज़ायर पे नहीं है तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। बट इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इसको हम देखेंगे। अब अभी के लिए आप समझ लो कि जो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज होती हैं वो वैलिड नहीं होती बट फॉर दिस वीडियो ओनली। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट आते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन पे। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपने क्या किया, ए हैज़ गिवन हिज कार टू बी एंड बी हैज़ पेड 2 लाख रुपीज़ टू ए, दैट्स ऑल। प्रेजेंट मतलब अभी, साइमल्टेनियसली इंस्टेंटली जो चीज़ हो जाए उसको हम प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। ए ने अपनी गाड़ी बी को दी, बी ने इंस्टेंटली साइमल्टेनियसली 2 लाख रुपीज़ दे दिए, तो दिस इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। तो वहाँ हम वर्डिंग यूज़ करते हैं ना, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, तो डज मतलब present consideration, and third is the future consideration, which is also called executory consideration because it is to be executed in near future. For example, A and B are two people, they have entered into a contract with each other on 1st of January 2021. A बोलता है B को कि by 10th of January within these 10 days I will be delivering you my car, और B बोलते हैं कि जिस दिन मुझे कार डिलीवर हो जाएगी आई विल बी पेइंग यू विद द मनी। इट मीन्स इट इज़ अ कंसिडरेशन विच इज़ टू बी डन इन नियर फ्यूचर, तो इसको हम बोलते हैं future consideration. So past consideration means a consideration which you have already, you have done an act prior to the promiser making a promise to you for paying you something in return, उसको हम बोलते हैं past. Present मतलब instantly simultaneous जो चीज़ साथ की साथ हो जाए, गाड़ी दी पैसा लिया, that is all. Future consideration is to be executed in near future on so and so date as promised between the parties. तो ये होती है 3 तरीके की consideration. And guys, last but not the least is the point, fourth essential, which is something. ये something word बहुत important है, आपको इसकी definition में देखिएगा something। मैंने आपको जब definition बताई थी उस टाइम पे भी I've used this word something. Something मतलब any kind of act, any kind of abstinence or any kind of promise. ये बहुत important word है। Any kind of act मतलब कुछ करना, एब्सटिनेंस मतलब कुछ ना करना, omission to do something, और एनी प्रॉमिस। तो अगर इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में समथिंग नहीं होगा, मतलब इफ समथिंग इज नॉट डन, राइट, अगर आपने कुछ नहीं किया तो उस चीज़ को हम वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानते। यानी कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी कि कंसिडरेशन का जनरल मीनिंग अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 2D, अपार्ट फ्रॉम द लीगल मीनिंग, कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। तो अगर ये समथिंग नहीं होगा तो कंसिडरेशन नहीं होगा। और समथिंग में कोई आपको एक्ट करना है किसी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर गेटिंग
10,000 रुपीज़ फॉर सेविंग अ पर्सनस लाइफ, यू हैव टू सेव समबडीज लाइफ। आपको किसी की जान बचानी है, तभी उसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। सो इट्स एन एक्ट विच इज़ डन बाय यू। तो एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, तो किसी भी तरीके का समथिंग हो सकता है, बट इफ समथिंग इज नॉट डन एंड दिस समथिंग इज मिसिंग, नथिंग इज डन, तो उस चीज़ को आप नहीं कहोगे वैलिड कंसिडरेशन। समथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब इस चीज़ को समझने के लिए, ये समथिंग वर्ड को समझने के लिए विल बी डिस्कसिंग 2 केस लॉज। उनका वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉ सर अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली 1914। इस केस में क्या हुआ था गाइस, देयर वाज अ पर्सन मासूम अली, इसने प्रॉमिस किया था टू द अदर पर्सन ए, यानी कि मासूम अली ने अब्दुल अजीज़ को प्रॉमिस किया था कि आई विल बी पेइंग यू विथ 500 रुपीज़। किस चीज़ के लिए? फॉर अ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। बेसिकली देयर वाज अ मॉस्क्यू दैट वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड, और उस मॉस्क्यू की कंस्ट्रक्शन के लिए मासूम अली ने अब्दुल अजीज़ को कहा कि एज अ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन आई विल बी पेइंग यू विथ 500 रुपीज़। ठीक है, इस इंसान ने मान लिया, बट इसको समथिंग इन रिटर्न अब क्या मिला? अब एक दिन क्या हुआ कि जो अब्दुल अजीज़ है वो मासूम अली को बोल दे कि आप अपने 500 रुपीज़ आपने दिए नहीं फॉर चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। मासूम अली बोल दे कि आई विल नॉट बी पेइंग यू विद एनी रुपीज़, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब यहाँ पे जो अब्दुल अजीज़ है वो कोर्ट में जाते हैं एंड ही स्यूड दिस पर्सन। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि समथिंग इन रिटर्न कहाँ पे है? आप उससे 500 रुपीज़ मांग रहे हो एज अ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क्यू। हैव यू एवर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मॉस्क्यू? जिस चीज़ के लिए आप पैसा मांग रहे हो, तो क्या आपने उसके कंस्ट्रक्शन को शुरू किया? आपने समथिंग इन रिटर्न दिया जिस चीज़ के लिए वो पैसा देगा। क्या वो चीज़ शुरू हुई? क्या वो चीज़ हुई? तो जब आपने उसको समथिंग इन रिटर्न नहीं दिया तो ही इज़ नॉट कंपेलेबल टू पे 500 रुपीज़। अब ऐसा ही इसका डिफरेंट वर्डिक्ट आया एक और केस लॉ में, विच इज़ केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद 1887। गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल केस लॉ है, सिमिलर ऐसे ही फैक्ट्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ, देयर वाज अ पर्सन मोहम्मद गौरी, इसने भी प्रॉमिस किया था कि आई विल बी पेइंग यू विद ₹100 की जो अथॉरिटीज़ हैं, देयर वाज अ टाउन हॉल दैट वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड। उस टाउन हॉल की अथॉरिटीज़ को मोहम्मद गौरी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा, इस टाउन हॉल के कंस्ट्रक्शन में मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी डालना चाहता हूँ। नाउ ऑन द फेथ ऑफ दिस प्रॉमिस बाय मोहम्मद गौरी, जो ये टाउन हॉल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया और कंस्ट्रक्शन को एक्चुअल में स्टार्ट करवा दिया। सो ऑन द फेथ ऑफ मोहम्मद गौरीज प्रॉमिस for paying ₹100 as a contribution to this construction of town hall, they have hired a contractor, they have entered into a deal with it and they have actually started the construction work. अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी मना कर देते कि मैं आपको 100 रुपीज़ नहीं दूंगा, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यू आर लीगली कंपेलेबल टू पे 100 रुपीज़। इसका रीज़न क्या है कि समथिंग इन रिटर्न, आपके प्रॉमिस के लिए समथिंग इन रिटर्न आपको मिला। जिस चीज़ के लिए आप पैसा देना चाहते थे वो चीज़ एक्चुअल में स्टार्ट हो चुकी है, तो समथिंग इन रिटर्न यहाँ पे है। अब इस बेसिस पे आपको 100 रुपीज़ देने हैं और आप मना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप 500 रुपीज़ कोर्ट कंपेल करेगा, प्रोवाइडेड जिस चीज़ के लिए वो पे करेगा उस चीज़ को शुरू किया जाए, यानी कि ही मस्ट ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न। ये समथिंग क्विड प्रो क्यो, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस इज इंपॉर्टेंट। उसने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आपको 500 देगा, बट क्या उसका प्रॉमिस पूरा हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे उसका प्रॉमिस पूरा हुआ, इसीलिए कोर्ट उसको भी कहेगा कि अब अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो ये डिफ्रेंसिएशन है दोनों केसेस में। सो गाइज आई होप आपको समझ आए कि कंसिडरेशन के एसेंशियल्स क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज डी में इसको डिस्कस किए, बहुत ईजी है, 4 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी मूव्ड, इट मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। अगर वो प्रॉमिसर के डिज़ायर पे नहीं होगी, एज इन दिस केस, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। सेकेंडली, कंसिडरेशन इट मस्ट मूव बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो ये इंसान पे करेगा, ए और बी की एग्जाम्पल, और एनी अदर पर्सन। और एनी अदर पर्सन जो हमारे बेयर एक्ट में वर्ड है ना, एनी अदर पर्सन, दिस वर्ड डिफ्रेंशिएट्स द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। इंग्लिश लॉ से हम डिफ्रेंशिएट इस वर्डिंग में करते हैं। हमारे यहाँ पे एनी अदर पर्सन मीन्स इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बट इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, ये केस लॉ आपको क्रिस्टल क्लियर करता है इस पॉइंट को। थर्ड, हमने टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन को डिस्कस किया, क्योंकि हमारे बेयर एक्ट में वर्डिंग है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 कंसिडरेशन को समझाती है। एंड फोर्थ इज समथिंग इन रिटर्न। समथिंग का मतलब होता है एन एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस। यहाँ पे क्या था? प्रॉमिस था, राइट। सो एन एक्ट, एन एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस फॉर अ कंसिडरेशन इज नोन एज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो वो कंसिडरेशन होती है फॉर प्रॉमिस। सो आई होप गाइज आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई। ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय मी हियर इन दिस वीडियो।
बहुत प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन किया विद ऑल द इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट केस लॉज. सो थैंक यू सो मच गाइज. इसके बाद विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 25, क्योंकि हम बोलते हैं कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. आई होप आपको पता है, यहाँ पे भी हम देख चुके हैं कि जिस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होती वो वॉइड होती है, और वो कंसिडरेशन भी वैलिड होनी ज़रूरी है. वो वैलिड कब होगी? जब उसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स पूरे होंगे. एज इन दिस केस यहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड नहीं थी. क्यों वैलिड नहीं थी? क्योंकि उसके एसेंशियल्स पूरे नहीं थे. तो हमें पता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. और ये हम वैसे भी देख चुके हैं कि देयर मस्ट बी अ प्रपोजल फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आती है, कंसिडरेशन इज कपल्ड विद एन अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो इस तरीके से हम स्टेज चढ़ते जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचते हैं. तो जिस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो कंसिडरेशन वो अग्रीमेंट ही नहीं होती. बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होती तब भी वो अग्रीमेंट वैलिड होती है. तो ये सेक्शन 25 है, इसी से रिलेटेड है. इसीलिए अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग सेक्शन 23 एंड 24, आई विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग सेक्शन 25 एंड देन विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 23 एंड 24 ऑल्सो. तो इसी से रिलेटेड है, हम उसको रीड करेंगे. सेक्शन 25 इज नथिंग बट एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे जहाँ पे कंसिडरेशन अगर नहीं भी होगी तो भी अग्रीमेंट वैलिड होगी. So guys, stay tuned for more videos. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much guys. Keep learning, stay safe and bye-bye.